Hello guys, 24th of August 2017, Supreme Court of India awards all of us with a very new right of privacy. And since it's the ending of August 2022, we'll be completing 5th year anniversary of this right. So I'm here today to analyze this right. How has it been performing? What are some of the important judgments regarding it? How is the enforcement status currently? And what are some of the solutions and challenges that this right faces? Before beginning, I would like all of you to practice this question. Pause the video, read it, and try to solve it. If you cannot, by the end of the video, you'll definitely be able to do so. कंटेक्स्ट ऐसा है गाइस कि हम लोग की जिंदगियों में काफी सारा इंफॉर्मेशन होता है एंड इंफॉर्मेशन के चलते वक्त देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज पर्सनल इन विच द स्टेट शैल नॉट हैव राइट टू इन्फ्रिंज अपॉन. पर्सनल इंफॉर्मेशन में स्टेट्स का कोई अधिकार नहीं है बिना किसी जरूरत की आपको इसमें इन्फ्रिंज करने का. बट हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं था जो इस इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता था. और अगर ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट नहीं होता है तो इस इंफॉर्मेशन की हाथ स्टेट पे जा सकती है या प्राइवेट एंटिटीज के भी साथ भी जा सकती है. एंड वंस दिस प्राइवेट एंटिटीज हैव दिस राइट विद देम, have this information with them, they can use it against you. And if it is used against you, this is a clear violation of your personal liberty and your personal right to life, guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, Part 3. सो इसी को मतलब ठीक करने के लिए हमारे जो ये ज्ञानी जज है, this is actually Mr. K.S. Puttaswamy. Yes, you might be shocked, but yeah, he is a very learned person and he is a retired judge of High Court who in 2012 सन में ही उन्होंने क्या किया? He basically tried to file a writ petition. उन्होंने एक writ petition फाइल किया challenging the constitutional validity of the Aadhaar scheme. आधार एक एक्ट आई थी गाइस जिसके द्वारा सरकार हमारी बायोमेट्रिक्स, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहती थी एंड वी ऑल नेवर न्यू कि उस इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे क्या होगा. एंड जस्टिस पुत्तस्वामी को ये चीज़ पसंद नहीं आया एंड उन्होंने द देन यूपीए सरकार के खिलाफ ये एक केस फाइल किया था ऑन अगस्त 2015. ठीक है, इसका फर्स्टली इनिशियली ये 3 बेंच जज था of Chilameswar, Bobde and Chi Nagapannan, but later on this number of bench members has been increased to 9 bench members. These are all the justices that have tried and tested this case, right? 9 bench members हो गई थी. And later on in a historic delivery on 24th of August 2017, the bench unanimously recognized the fundamental right to privacy of every individual guaranteed by the constitution. राइट टू प्राइवेसी को ये लोग एक फंडामेंटल गारंटी बनाते हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21. राइट. सो इसी के दौरान मतलब प्राइवेसी का बड़ा चला, मतलब एक दौड़ चला. पीपल tried to recognize it, people tried to understand what is privacy and people have cherished this. But in the current times, अगर हम लोग आज की बात करें तो there are certain challenges this particular right faces. What is those challenges? कि even though 5 साल हो गया है इसका, but there is no proper implementation of this. Implementation errors बहुत ज़्यादा हो रही है. Why? Because we get to see that still data is being infringed. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021, बट ये विड्रॉ कर दिया गया था आफ्टर एन अननेसेसरीली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन. तो इसमें डायरेक्टली सरकार का स्टैंड देखने को मिलता है कि डेटा प्रोटेक्शन या पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब
सरकार इतना ज़्यादा स्ट्रेस करना ही नहीं चाहती है। अगर आप लोग देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन बड़े सारे मतलब जोरों शोर में हो रहा है, एंड ये सारा डेटा जो है कंज्यूम किया जाता है इलेजिटिमेटली एडवर्टाइजमेंट्स के दौरान। आप लोग आजकल वाकिफ होंगे इस बात पे कि आप लोग गूगल में कोई भी सर्च करेंगे, that particular ad will be showing all over your social media, that particular ad will be shown all over your YouTube, ठीक है। तो ये तो बड़ा क्लियर सा चीज है कि आप कहाँ जा रहे हैं, गूगल सारा ट्रैक कर रही है। गूगल उस चीज को सरकार को बेचती है, सरकार वो चीज प्राइवेट एंटिटीज को बेचती है, एंड प्राइवेट एंटिटीज उससे फायदा उठाती है। तब तक तो सही है जब तक ये एथिकली हो रहा है, बट व्हाट इफ यू आर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आपकी मूवमेंट्स ट्रैक हो रही है, आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, आपको किडनैप किया जा सकता है, आपको रैंसम बेचा जा सकता है। सो ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू माइंड। काफी सारे फिशिंग अटैक्स होते हैं, फिशिंग। Now this is a new term probably you have come across. तो phishing attack is particularly a cyber attack जिसके मतलब जिसके थ्रू people try to replicate a real website। जैसे for example Facebook का वेबसाइट होगा तो Facebook नहीं लिख के फेसबुक लिखा होगा, एंड पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेम होगा। पीपल विल नॉट रियलाइज दिस इज अ फेक वेबसाइट। आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड सारा ले लिया जाता है, एंड देन these people log in through your actual Facebook account and misuse the particular platform। तो ये सारी चीजें एक्चुअली ट्रैकेबल भी नहीं हो रही है आज के दौरान, बिकॉज डेटा लोकलाइजेशन का बिल जो भी है वो भी नहीं, मतलब डेटा लोकलाइज्ड नहीं है हमारा। You know that all the data of these big companies are stored outside Indian terrain, तो हम लोग उस पर भी एक्सेस नहीं कर सकते। उसके ऊपर lot of people are using VPN services, right? ये जो VPN जैसे कि आपका lot of VPNs are now Droid VPN हो गया, या फिर various other VPNs are there। तो ये सारे यूज करके लोग क्या करते हैं, अपनी IP एड्रेसेस को भी मतलब मास्क कर लेते हैं, तो आपको ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है इस दौरान। So people are not, the government is not having a good infrastructure through which you can basically make use of this right to privacy। right to privacy बस नेम से एक आया है हमारे यहाँ पे। right to privacy even though we have it, still we cannot use it। right to privacy एक बस धोखा किस्म का हो रहा है हम लोग के साथ, होने के बावजूद हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पीपल आर स्पाइंग ऑन अस, प्राइवेट एंटिटीज आर स्पाइंग ऑन अस। आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द पेगासस स्पाईवेयर अटैक, जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर एक स्पाईवेयर का एक पर्सनल डेटा इन्फ्रिंजमेंट का अटैक हुआ था of the various Indian high dignitaries of the Indian government also। So इस दौरान मतलब even though we are having the right to privacy but we are not making full use of it। तो ऐसा प्राइवेसी होने का क्या मतलब मीनिंग रहा, right? So we have to make sure that government is doing and taking steps like data localization, personal data protection bill, and these things are implemented in the current times, right? तो challenges आप लोग ने समझ ली already, that personal data is still under a huge attack। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लोकलाइज्ड नहीं है, साइबर अटैक्स। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस, एंड इसका सॉल्यूशंस अगर हम लोग बताएंगे तो उसी के साथ साथ सॉल्यूशंस इसका बड़ा क्लियर है। वी हैव टू हैव डेडिकेटेड एक्ट्स, वी हैव टू हैव डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी हैव टू हैव साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर to tackle such problems in the current times, and we have to make sure that all the citizens are safe and safeguarded by this terror attacks of data localization and data infringement। So I hope you have understood from this topic। This is the practice question now। बड़ा आसान हो गया है आपको आंसर देने का। So following which of the following articles covers the right to privacy as a fundamental right? The answer is definitely article 21। Thank you so much guys, I hope you have benefited from this video। See you there, bye bye। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি, প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা।